Hello friends, yesterday we have studied about the cleat angle connection for beam to beam. Now in beam to beam we have studied in last lecture that there are two types of connection. One is cleat angle connection and another one is sheet angle connection. We have done the example on the base of cleat angle connection, and like that, today we will see the example based on beam to column connection. Now, in beam to column connection, in beam to column connection, there are two types. There are also two types. One is cleat angle connection, and second one is sheet angle connection. Okay, first one is cleat angle connection and another one is sheet angle connection. Now, cleat angle connection calculation is same as the cleat angle calculation for beam to beam connection. Means कल हम जो अगले पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा कि बीम टू बीम कनेक्शन में क्लीट एंगल कनेक्शन कैसे हो रहा है, वैसे ही बीम टू कॉलम में भी सेम टू सेम प्रोसीजर होगी. वीडीएस भी फाइंड करना है, वीडीपी भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो आज हम तो बीम टू कॉलम कनेक्शन में ये टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम है, जैसे बीम टू बीम किया है वैसे ही. अब सीट एंगल कनेक्शन में क्या होगा कि two types of connection. One is unstiffened connection. And second one is stiffened connection. Today, in this lecture, I will cover the topic of unstiffened connection. We will study about the unstiffened connection. For understanding what is unstiffened connection and what is stiffened connection, we have to first understood that how the beam is connected to the column. We have understand that beam to beam connection, the second beam is connected to the main beam. The secondary beam transfer its load through main beam and main beam transfer its load to column. So here exactly the point that main beam will be connected to the column. Now in beam to beam connection, we have understand that the secondary beam is connected to main beam. The both beam is connected through its web portion. Means the web portion of secondary beam is connected to the web portion of main beam. So in beam to column connection, what will be the procedure of transferring the load, or where the beam will be connected to the column portion, that I will show you. Suppose that this is our beam.
Okay, this is our beam. This portion is known as flange portion, and this is our web portion. Okay, now in beam, in beam to beam connection, the web portion of beam is connected to the other web portion of beam. But in beam to column connection, the web portion will be connected to the flange section of the column. How? Let's see. Okay. Now you can understand that how the column will be placed vertically. The column will be placed vertically, and at this the beam will be connected in the front view. Means this is the front view. So how it will be seen? So it will be seen like this. This is the column, like, and this is the column. Okay. This portion is this thickness, and this is the web portion of column. This is the web portion of column, and this thickness is this. Now this is the flange portion. This is flange, and this is web. Okay, the beam will be connected to the flange. Okay, this is the beam connected. This is web portion of the beam. Now, if there is cleat angle connection, then you just have to simply connect your angle to the web to the flange. In beam to beam connection, we were taking that the web portion of secondary beam is connected to the web portion of main beam. But here, the web portion of beam is connected to the flange portion of column. Okay, in cleat angle connection. But unstiffened connection is one type of sheet angle connection. So sheet angle connection means, in last lecture I have explained you that sheet means you have to sheet. Means this is the angle, this is the support we give. Okay, this is the support we give. So here the angle will become like this. The bolts will connected here like this. But if we place the angle here, then we should have to place angle here also. Why we should have to place angle there also? Because the failure will be occur like that. The beam will fail like this. If the angle will not there, then the beam will fail like this. Okay, the angle, this angle is used to connect the beam portion of the upper side of the beam portion to the flange portion. Okay, मीन्स इसको सिर्फ इसको इसके साथ अटैच करने के लिए ही रखा जाता है, इसकी कोई डिजाइन नहीं होती. ओके, सो यहाँ पे अनस्टीपन कनेक्शन में मेन क्वेश्चन क्या है कि अपन को ये एंगल डिजाइन करना है, और ये एंगल किस बेस पे डिजाइन करना है, बस वही कैलकुलेट करना है अपन को अनस्टीपन कनेक्शन में. सो वी आर moving towards an example of unstipend connection. On the basis of that, I will explain you that what is unstipend connection and what we have to do in unstipend connection. Okay.
In cleat angle connection, the main portion was to decide the size of the angle and the number of bolts. But in here, in unstiffened connection, we have to decide the section on the basis of check of moment and check for shear, because the beam is directly connected to the column. That means the maximum shear will be transferred at the connection area, and the maximum moment also will be transferred at the connection area, because the beam takes the loads of secondary beam and slab portion, and then it transfers to the column portion. And column is the main part of the building or any structure to transfer the load, because that's why the column take the maximum load to it. So for maximum load, we have to also design a connection with resisting maximum load. Okay, that's why we are using unstiffened connection. Okay, so now I am showing you the one example that for unstiffened connection. Here I have given you one example of unstiffened connection. In example, the question is a beam ISLB 350. What it is given? A beam ISLB 350 means I will write data here. Beam ISLB 350. Now it is written at the rate 49 kilogram per meter. At the rate 49 kilogram per meter. Okay, I will explain you later what is that. Spanning 5 meter means beam is spanning 5 meter. So our length is 5 meters, and it is written is carrying a total factored UDL load of 200 kilonewton. Means it is taking a load of 200 kilonewton. Okay, 200 kilonewton. The beam is connected with the flange of the column. ISHB means it is connected to the column flange ISHB 200. Okay, ISHB 200 at the rate 40 kilogram per meter. At the rate 40 kilogram per meter. Design suitable seat angle unstiffened connection M16 bolts. Means you have given the number of means diameter of bolts. M16 means M is the grade and 16 is the diameter. Okay, of 4.6 grade. 4.6 grade. And FE you have given 410. It is fixed. Okay, these are our data. Now, what do you mean by ISLB 350 49 kilogram per meter? Now ISLB means you know that Indian Standard Lightweight Beam, and 350 is the depth of the section, I section. What is 49 kilogram per meter? 49 kilogram per meter is the weight. Means generally we can explain that if any section is same as this section, ISLB 350, but its weight is 55 kilogram per meter. Means the difference only is that it is 55 kilogram per meter and this is 49 kilogram per meter. Means दोनों एक जैसे सेक्शन है, दोनों सेम ही बनाए हैं, पर कुछ प्रॉपर्टीज चेंज की हुई है. मीन्स इसकी शायद थिकनेस बढ़ाई हो, सिर्फ थिकनेस ऑफ फ्लेंज बढ़ाई हो, थिकनेस ऑफ वेब बढ़ाई हो, पर उसकी डेप्थ सेम रखी हो, तो उसको डिफरेंस किस हिसाब से करते हैं? सो 49 किलोग्राम पर मीटर और 55 किलोग्राम पर मीटर. लेट मी सी यू. मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेंज होता है. देखो यहाँ पे मैंने स्टील टेबल दिया हुआ है. तो ये स्टील टेबल में एक पोर्शन दिया हुआ है. सपोज एक सेक्शन ले लेते हैं अपन. या यहाँ पे देखो ISMB चल रहा है, ISHP चल रहा है, ISLB आ गया.
देखो यहाँ पे एक सेक्शन है ISSB 150, ISSB 150, ISSB 150, तीनों का डायमेंशन सेम है, ISSB 150, ISSB 150, ISSB 150, बट डिफरेंस क्या होता है? ये पहला जो कॉलम है वो वेट, ISSB 150 at the rate 27.1, ISSB 150 at the rate 30.6 एंड ISSB 150 at the rate 34.6। तो तीनों वेट के हिसाब से डिफरेंस होते हैं। इसकी सारे डायमेंशन मोस्टली सेम है, बस चेंज हुआ है तो थिकनेस ऑफ वेब चेंज हुई है उसकी, जो 5.4 है, 8.4 है और 11.8 है। तो इसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। पर हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया हुआ है कि आपको ISLB 350 49 किलोग्राम पर मीटर ही यूज करना है। तो ISLB 350 जो ट्रांसफर करेगा रिएक्शन 200 किलोन्यूटन, जो यूडीएल फैक्टर लोड है, किस पे ट्रांसफर करेगा? ISHP 200 पे। तो ये 40 किलोग्राम पर मीटर। ओके, तो मैं आपको एक बार स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके स्टेप्स कौन से आएंगे। तो ये है, देखो स्टेप्स है, पहले तो डेटा लिख दो जो अपन ने लिख दिए, फिर नंबर ऑफ बोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ बोल्स किस हिसाब से फाइंड करने हैं? वो कल वो अगले लेक्चर में अपने फाइंड किया था, वो पहले वाले लेक्चर में कि R अपन VDB, ठीक है। फिर क्या किया है? प्रोवाइड द एंगल सेक्शन, मीन्स नंबर ऑफ बोल्स फाइंड कर लेंगे तो अपन को एंगल सेक्शन मिल जाएगा कि कितना साइज का एंगल चाहिए। फिर क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ रूट लाइन। अब रूट लाइन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना, आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं पहले कि ये रूट लाइन क्या है। तो देखो ये फ्लेंज पोर्शन है, समझ लो कि ये कॉलम का फ्लेंज है, ओके। और ये बीम यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा क्लियरेंस लगते हैं हमेशा के लिए, और एंगल यहाँ से कनेक्ट किया जाता है ऐसे। यहाँ पे थोड़ी गैप पहले से रखी जाती है, ठीक है। तो अब रूट लाइन मीन्स क्या? कि मैक्सिमम रिएक्शन दैट बीम टेक बिफोर ब्रेक। मीन हमें पता है कि बीम की कॉर्नर हमेशा 45 डिग्री पे ब्रेक होती है, ठीक है। बीम की कॉर्नर हमेशा कितने 45 डिग्री पे ब्रेक हो जाती है, 45 डिग्री पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लेंथ कितनी रखे कि वो 45 डिग्री पे ब्रेक हो। जैसे कि यहां से ब्रेक होता है बीम, ये 45 डिग्री है, तो यहां से ब्रेक होता है। अगर यहां से ब्रेक होगा तो अपना बीम कॉलेप्स हो जाएगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली कॉलेप्स होगा। इसके लिए अपन को ये एंगल इतना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल अपन ने इतना बढ़ाया, कितना? यहां तक तो बढ़ाना पड़ेगा। ओरिजिनल क्या है? इतना, और टूटेगा तब क्या होगा? इतना रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो ये लाइन को हम कहते हैं रूट लाइन, जो मैक्सिमम रिएक्शन लगेगा। मैक्सिमम रिएक्शन बीम के इस पोर्शन में लगेगा, ये उसे बोलते हैं अपन मैक्सिमम रिएक्शन पोर्शन, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसकी वजह से यह मूवमेंट होगी और इसकी वजह से यहाँ शियरिंग इफेक्ट होगी। मीन्स के मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने एंगल इतना रखा तो बीम तो ये ऑब्वियसली टूट जाएगा। पर हमें ना टूटे उसके लिए सब मैक्सिमम कितनी लेंथ कवर करनी होगी? यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ से तो टूट ही जाएगा, ऐसे गिरेगा तो यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा। पर हम अगर एंगल की साइज इतनी रखे मैक्सिमम, तो ये नहीं ब्रेक होगा, तो ये रेजिस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये बी के हिसाब से अपन को एंगल की विड्थ मिल जाएगी, ओके। तो वो किस पे डिपेंड होती है? बी किस पे डिपेंड होता है? ये ब्रेक रिएक्शन पे डिपेंड होता है, ओके। तो ये रिएक्शन को रेजिस्ट कैसे किया जाता है? तो बीम की जो वेब पोर्शन है वही रेजिस्ट करती है, तो क्या आएगा उसके साथ? थिकनेस ऑफ वेब आएगी, क्योंकि बीम का जो वेब पोर्शन है वही रेजिस्ट कर रहा है ये पोर्शन को। हमेशा ये याद रखो कि वेब पोर्शन रेजिस्ट ओनली शियर एंड फ्लेंज पोर्शन रेजिस्ट ओनली बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको आई सेक्शन में फ्लेंज और वेब पोर्शन दोनों दिया है तो इसका मीनिंग ये नहीं
कि वेब पोर्शन बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वेब पोर्शन क्या है, वर्टिकल पोर्शन है, तो ओनली शियर इफेक्ट को रेजिस्ट करेगा, और फ्लेंज पोर्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो वो हमेशा बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो ये बी है वो किस पे डिपेंड रहेगा, आर पे। आर मीन्स क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन जो अपन को दिया हुआ है, और वो इफेक्ट कौन रेजिस्ट करेगा, थिकनेस ऑफ वेव, और थिकनेस ऑफ वेव के साथ क्या आएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ वाई डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम जीरो। So this is the equation to calculate the length of root line. This is B. It's known as length of root line. Okay, this is B. It is the length of root line. Now, fifth step is find the bearing length. Now, what is bearing length? Any guess that what is bearing length? So, let me explain you that what is bearing length. Again, I am drawing the figure very. This is the flange of column. Okay. This is the beam connected. Okay. This is the beam connected. Now, this is our angle. Assuming we have not provided yet angle, but we are assuming that this is our angle. And this is the length B. Okay. Now B1. B1 is the bearing length. B1 is what? Bearing length. And bearing length is maximum load occurs. The maximum load occurs at the point before the break occurs. Means 45 डिग्री से फेल होने के पहले कितना मैक्सिमम लोड लग रहा है, वो कितनी लेंथ पे लग रहा है, वो B1 कहते हैं, और वो होती है कॉलम के फेस से। देखो ध्यान से कि ये B जो है रूट लाइन की लेंथ वो बीम के फेस से यहाँ तक की है, और ये कहाँ से लिया मैंने, B1 से लिया, वो मैंने कॉलम के फेस से कैलकुलेट किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लियरेंस दिया हुआ है, क्लियरेंस प्लस टॉलरेंस कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, टॉलरेंस, और दोनों की वैल्यू अपन 3 mm टू 5 mm तक ले सकते हैं। ओके, तो B1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो B1 इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है मैंने, B1 इज इक्वल टू B माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम मिस्टेक, देयर इज मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, सॉरी, यहां से नहीं आएगी लेंथ, यहीं से आएगी B1 की लेंथ। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। चलो ये B है, और बेरिंग लाइन मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम लोड ऑफर्स, तो ये इतना B1 है, वो कॉल बीम की फेस से ही आएगा, इतना B1 है, तो B1 क्या है, अपनी बेरिंग लाइन। ओके, सो B, तो उसमें से इतना पोर्शन अपन कट कर दे,
ये जो पोर्शन है ट्रायंगल वाला, उतना पोर्शन कट कर दे तो अपन को B1 की लेंथ मिल जाएगी। बी में से इतना पोर्शन अपन ने कट कर दिया तो अपन को कितनी किसकी इसकी लेंथ मिल जाएगी। वेट, क्या कह रहा हूं मैं, ये बी है और ये B1 है, तो बी में से इतना पोर्शन अपन ने कट कर दिया, ये ट्रायंगुलर वाला, तो अपन को B1 की लेंथ मिल जाएगी। तो वो कैसे कट करेंगे, अब समझ लो कि ये कितना पोर्शन है, तो मैं ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, तो आपको अंडरस्टैंड आएगा कैसे। देखो, इतना पोर्शन सिर्फ जूम करके दिखाता हूं। ऐसे यहां से ये है B1 और B, यहाँ पे लोड लग रहा है और यहाँ से इतना है B1। ओके, तो समझ लो कि ये 45 डिग्री पे ब्रेक हो रहा है तो ये स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या है, तो ये पोर्शन अपन को कैसे पता चलेगा। अब एक बात मैं बता देता हूं कि मैक्सिमम बीम की साइज अपनी कैसी होती है। यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या है, B1 इज इक्वल टू B माइनस TF प्लस RB। अब TF तो अपन ने समझ लिया कि थिकनेस ऑफ फ्लेंज। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कैसे, तो देखो, ये है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये अपना लोड लग रहा है और यहां से ब्रेक हो रहा है। ओके, तो क्या होगा कि इतना B1 होगा और इतना B होगा, तो मैं ये समझ लो ये ब्रेक होगा यहां से, सॉरी, ओके, नीचे से ब्रेक होगा। तो बीम ब्रेक अपना आई सेक्शन एक्चुअल में ऐसा होता है, यहाँ पे रेडियस होता है। क्या होता है रेडियस, इसको बोलते हैं अपन RB। रेडियस का काम कुछ नहीं है, वो कोई भी लोड नहीं लेता, वो कहां से भी रिएक्शन नहीं लेता, वो कोई भी मोमेंट नहीं लेता। तो ब्रेक कहां से शुरू होगा, जब वो रेडियस खत्म होगा तब। तो मैं समझ लू कि इतना पोर्शन अपने आई सेक्शन का क्या है, यहाँ पे ये आई सेक्शन है तो इतना पोर्शन होगा रेडियस। तो ये रेडियस का पोर्शन, इसको इतना समझ लो मैं RB, और इसको मैं ये समझ लू कि ये है TF, थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ बीम, और ये है रूट रेडियस ऑफ बीम। अब ये 45 डिग्री पे ब्रेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि 45 डिग्री मीन्स इट इज अ स्क्वायर पोर्शन। तो स्क्वायर पोर्शन है तो ये क्या हो गया, TF प्लस RB हो गया। तो मैं ये समझ लू कि ये भी TF प्लस RB ही होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री वो ब्रेक हो रहा है। ओके, तो मैंने क्या किया, B1 इज इक्वल टू ये B है, उसमें से ये TF प्लस RB को डिडक्ट कर दिया, तो मेरे को मिल गई B1 की लेंथ, पेयरिंग लेंथ। ओके, सो आपको पता चल गया कि B1 कैसे फाइंड करते हैं अपन। अब आगे जाते हैं कि B2 कैसे आता है। तो B2 क्या है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स, मीन फ्लेंज बीम 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 लोड। ओके, तो ये है B1, ये है B। अब क्या हुआ कि ये रिएक्शन की वजह से बेंडिंग मोमेंट लगेगा, तो वो बेंडिंग मोमेंट कहाँ लगेगा, तो बेंडिंग मोमेंट आई थिंक इतने पोर्शन में लगेगा कि यहां से यहां तक लगेगा। अब वो उसकी परफेक्ट लेंथ हमको पता नहीं है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, तो उसे बोलते हैं अपन B2। और वो कितना लगता है,
वो हमें पता नहीं है। आगे मैंने समझाया कि रेडियस तक नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से B2 की कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं B2 की लेंथ लेता हूँ क्या, कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू लोड, वो कितनी लेंथ में लगेगा लोड। तो ये रहा उसका, मैंने एक एग्जांपल दिया और इसको हमने इमेजिन किया कि ये B2 है, पर B2 कितना लगेगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो B2 इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन क्या मैंने लिखाया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है B2 इज इक्वल टू B1 प्लस C माइनस TA प्लस RA। तो अब ये क्या हो गया, तो B1 मीन्स क्या हो गया, B1 प्लस C माइनस TA प्लस RA। तो वो क्या हो गया, तो वो समझ लो कि B1 क्या है, तो ये इतनी लेंथ। अब अपने को पता है कि बेंडिंग मोमेंट किस पे लगेगा, एंगल पे लगेगा, वो बीम पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे बीम है, तो यहाँ से प्रेस करूंगा तो ये एंगल को ही ऐसा फोर्स करेगा। तो बेंडिंग मोमेंट कौन रेजिस्ट करेगा, अपना एंगल वाला पोर्शन, और एंगल की ये विड्थ वाला पोर्शन, ओके। तो जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो अपना एंगल पे लगेगा, तो उसकी लेंथ कहाँ से कैलकुलेट होगी, एंगल के एंड से कैलकुलेट होगी। तो एंगल का एंड कहाँ है, यहाँ पे। तो उसके हिसाब से अपन को फाइंड करना है कि वो एंगल पे कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन होगी कि जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपना लग रहा है। तो B2 को हमने क्या किया है, ये B1 प्लस C, ये मैंने कहा कि क्लियरेंस एंड टॉलरेंस, ओके, माइनस TA मीन्स क्या है कि ये थिकनेस ऑफ एंगल को डिडक्ट कर दिया मैंने, ये अपनी थिकनेस ऑफ एंगल TA, ओके। मैं थोड़ी परफेक्ट फिगर ड्रॉ करता हूं तो आपको अंडरस्टैंड इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। okay. ये है कॉलम की फेस, ये है बीम की फेस, यहाँ से इतना हो गया B, यहाँ से हो गया इतना B1, और B2 यहाँ कहीं पे लग रहा है, ये हमें पता नहीं है कि कहाँ पे लग रहा है, पर ये ब्रेकेज पॉइंट से पीछे लगेगा उतना पता है, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर होगा, ठीक है। तो उसमें से कितना डिडक्ट होगा, तो B2 इज इक्वल टू B1, तो ये ले लिया, प्लस C, ये रहा अपना क्लियरेंस एंड टॉलरेंस, माइनस थिकनेस ऑफ एंगल, इतनी पोर्शन में मोमेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये शियर वाला पोर्शन है, तो ये क्या हो गया T, क्योंकि ये वर्टिकल पोर्शन है तो यहाँ पे शियर लगेगा ऑब्वियस, और रेडियस कुछ लेता नहीं है, तो रेडियस को भी डिडक्ट कर लो। तो ये B1 प्लस C को ऐड करके उसमें से TA प्लस RA को डिडक्ट कर दो, तो अपन को स्पेसिफिक लेंथ मिल जाएगी ये B2, ठीक है। समझ में आ गया कि ये B2 स्टेप्स क्या है। अब आपको ये सब B1 B2 B ये सब क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अनस्टीफन कनेक्शन में किसके बेस पे अपन डिसाइड करते हैं कि ये एंगल ओके है कि नहीं, तो मोमेंट के बेस पे। तो इसके लिए अपन को मोमेंट फाइंड करनी होगी, और मोमेंट का इक्वेशन क्या है यहाँ पे, फाइंड फॉर फाइंडिंग मोमेंट, इक्वेशन इज m इज इक्वल टू r इंटू B2 बाय B1 इंटू B2 बाय 2। तो इसके बेस पे से अपन को पता चलेगा कि अपने रिएक्शन के हिसाब से अपने सेक्शन पे कितनी मोमेंट लगेगी, और हमें चेक किस इक्वेशन के बेस पे करना है, ये है मोमेंट का इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिएक्शन। और फॉर चेकिंग
the equation of moment is md is equal to 1.2 ze fy by gamma m 0. ओके, ये अपने सेक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से आएगा कि अपन ने जो एंगल प्रोवाइड किया है वो उसे रेजिस्ट करता है कि नहीं। मीन्स के अगर md की वैल्यू m से ज्यादा आई देन इट इज ओके, देन इट इज ओके। अगर कम आई तो अपने सेक्शन में चेंज करो, अपने जो एंगल सेक्शन प्रोवाइड करेगी उसमें चेंज करो, या तो फिर सेक्शन अपना फेल हो जाएगा। ओके, मेन अपन को बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से ही चेक करना होता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि उस अनस्टीफन कनेक्शन है क्या, उसके स्टेप्स है क्या, और उसके स्टेप्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके स्टेप्स के इक्वेशन का क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। In next lecture, I will take an example on the base of unstephen connection. On this data, we will continue our example. So thank you for today.